everyone, welcome to GS Booster Short, your daily dose for GS preparations. In our today's lecture, I am going to explain you Indian Express's Today's Explained section, which talks about the recently awarded Nobel Prize for Physics. Yes, this time the Nobel Prize for Physics has been given to 3 climate scientists. It is for the first time that Nobel Prize for Physics has been given to climate scientists, thus showing the integral nature of science with climate change. So, let us understand the contribution of these scientists. So these scientists have created models which helps us to understand the changes in Earth's atmosphere. It also helps us to understand and pinpointing the effect of human behavior on these changes in Earth's atmosphere, and ultimately also helps us predicting the impact of global warming. Out of these 3 scientists who have been awarded the Nobel Physics Prize for climate science, 2 have also been contributors to IPCC report, and this prize comes at an opportune moment because from November onwards, the COP26 is going to take place in Glasgow. COP26 is meeting of world leaders in order to discuss climate change and take remedial actions against them. So, one by one, now we are going to understand the contribution of these 3 scientists and see if these contributions are of any sort of a relation or could they be asked in any sort of a manner in our UPSC exam. Environment today happens to be a very important component of UPSC. I'll be explaining these concepts to you in Hindi for better understanding. So first of all, these 3 scientists are Socorro Manabe from USA, Klaus Hasselmann of Germany, and Giorgio Parisi from Italy. So basically, one half of the prize has gone to Socorro Manabe and Klaus Hasselmann, and the other half has gone to Giorgio Parisi. So let us now see as to the contribution of Socorro Manabe. So basically, from 1916 onwards, Socorro Manabe has been creating climate models. क्लाइमेट मॉडल्स क्या होते हैं? क्लाइमेट मॉडल्स हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि बेसिकली एटमॉस्फेयर में या फिर क्लाइमेट के अंदर कौन सी चीज़ किस कारण से होती है, एंड दीज आर सर्टेन वेरी बेसिक मॉडल्स दैट ही हैड क्रिएटेड फॉर अस, एंड इन मॉडल्स के थ्रू ही ज़्यादा बड़ी थ्योरीज के बारे में लिखा जा सकता है. दीज मॉडल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट सच एज ग्लोबल वार्मिंग. सो द वेरी बेसिक मॉडल फॉर विच Mr. Manabe has been given the Nobel Prize is this one. अब ये वाला मॉडल हमने अपनी NCERTs में भी पढ़ा होगा. इस मॉडल के अंदर ये समझाते हैं कि first, Earth receives sun's radiation and out of this radiation is reflected back from the surface of the Earth. Some of this heat is absorbed by the Earth, and out of the heat which is radiated back from the Earth, some heat is left in the atmosphere of the Earth and some heat goes in the space. अब ये जो हीट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह गई है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करेगी. अब एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ वेरियस सॉर्ट्स ऑफ गैसेस, ये हम समझते हैं. अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो होगा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड ये जो हीट है इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, विच मींस वह गैसेस जो हीट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और उन्हें रिलीज बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, एंड यहां पे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होंगी वो सभी गर्म होंगी. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू एब्जॉर्ब दिस हीट. अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो एयर मास है ये गर्म हो जाएगा, देन दिस एयर मास विल स्टार्ट राइजिंग अप, बिकॉज जो डेंसिटी वार्म एयर की होती है वो कोल्ड एयर से लेस होती है, एंड देयरफॉर एक कन्वेक्शन सिस्टम शुरू होगा जिसके अंदर जो ये हॉट एयर का मास है ये ऊपर जाएगा.
जब ये एयर मास ऊपर जाता है उस टाइम के अंदर वाटर वेपर भी इसके साथ ऊपर जाते हैं, बिकॉज इवेपोरेशन का एक प्रोसेस भी कंटिन्यूसली होता है। एंड जब ये वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के अंदर ये जो वाटर वेपर्स हैं ये लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसी करके जब भी इवेपोरेशन होती है तो एक तरीके की ठंडक आ जाती है, क्योंकि ये जो वाटर वेपर्स ऊपर इवेपोरेट होके जा रहे हैं वह हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इन वाटर वेपर्स को ऊपर ले जाता है ये एयर मास जो कि गर्म हो चुका है। जब ये एयर मास ऊपर जाएगा तो यहां पे कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हीट थोड़ी सी डिक्रीज होती रहेगी। कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू होएगा और यहां पे इन ये वाटर वेपर्स बना लेंगे क्लाउड। जैसे ही ये क्लाउड बनाएंगे वैसे ही ये अपने अंदर जो लेटेंट हीट इन्होंने एब्जॉर्व करी थी कंडेंसेशन के टाइम पे उस लेटेंट हीट को रिलीज कर देंगे। अलॉन्ग विद दिस यहां पे अब कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच चुकी है। सो इन दिस वेरी मैनर जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जिसने की नीचे अर्थ के ऊपर जो अर्थ ने हीट रिफ्लेक्ट करी थी वह ऑब्जॉर्व कर रखी है एंड साथ के साथ जो वाटर वेपर्स की लेटेंट हीट थी वो भी वहां पे ऊपर रिलीज हो चुकी है। एंड these are two main gases which are highly responsible for global warming. They retain heat because of them and इससे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी। एंड देयरफॉर अगर हमारे यहां पे CO2 कम रिलीज हो रही होगी तो इन दिस वेरी मैनर CO2 की कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में कम होगी एंड ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट भी कम होगा। सो ये मॉडल दिया गया मनाबे जी ने, सुकोरो मनाबे। नाउ कमिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हैसलमैन। अब मिस्टर हैसलमैन ने क्या किया है? मिस्टर हैसलमैन ने बेसिकली मॉडल्स बनाए हैं जो कि ये शो करते हैं दैट हाउ स्मॉल वेदर इवेंट्स विल लीड टू अ बिग क्लाइमेट चेंज। बेसिकली इसे अगर हम इसे समझना चाहें तो ये समवट रिलेटेड है बटरफ्लाई इफेक्ट से लेके। अगर आपने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है तो अब बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर बेसिकली जब हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, स्पेशली जब अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो क्योस थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। क्योस थ्योरी ये कहती है कि अगर हम ऊपर से किसी चीज को देखते हैं तो हमें लगता है कि किसी चीज का कोई कारण नहीं है, कोई भी चीज कैसे भी होती हुई जा रही है। हाउएवर जब हम इनके गहराई में जाते हैं तो इनर्टली सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके कारण ही वह चीजें रिजल्ट कर रही होती हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या कहता है? बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहता है कि जब ऐसी सेंसिटिव डिपेंडेंस है बेसिकली क्योस सिस्टम में, क्या होगा, जो वेरियस इवेंट्स जो टेक प्लेस कर रहे हैं उनका कारण है एक अंडरलाइंग कॉज एंड दिस अंडरलाइंग कॉज इज अ वेरी सेंसिटिव बेसिकली सिस्टम। एंड अगर इस सिस्टम के अंदर आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्रपोर्शनेट भी हो सकता है, डिस्प्रपोर्शनेट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज दैट यू हैव डन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने एक पानी की ड्रॉप ऐड करी है, लेकिन इस एक पानी की ड्रॉप को ओशन में ऐड करने से अगर यहां पे या कहीं पे सुनामी आ जाती है तो विच मीन्स इस एक ड्रॉप के ऐड करने का एक डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स आया है। ऑल्दो आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल नॉट टू से इट डजंट मीन कि ऐसा होता है, बट इन ऑर्डर टू टेल यू कि हम किस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। सो डिटर्मिनिस्टिक नॉन लीनियर सिस्टम, small changes in one state of deterministic non-linear systems can result in large differences in later state। deterministic यानी कि fixed है कि अगर आप ये करेंगे तो इसका यही रिजल्ट होएगा। नॉन लीनियर सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो आपने इनपुट है उसका जो रिजल्ट होएगा आउटपुट पे वो डिस्प्रपोर्शनेट होएगा, प्रोपोर्शनेट नहीं होएगा। एंड बेसिकली इन्होंने एक ऐसे मॉडल्स को आइडेंटिफाई किया
एंड बनाया मिस्टर हैसलमैन ने, जो कि ये शो करते हैं कि कैसे स्मॉल इवेंट्स, स्मॉल वेदर फिनोमिनन्स रिजल्ट करते हैं एक लार्जर क्लाइमेट चेंज की तरफ। एंड वाइल डूइंग दिस ही हैज आइडेंटिफाइड कि ये जो स्मॉल चेंजेस हुए हैं ये किसके कारण हुए हैं। क्या ये चेंजेस नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना थे या फिर देवर ह्यूमन इंड्यूस्ड। इसके थ्रू इन्होंने हमें यह समझाने की कोशिश करी है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ही हैज आइडेंटिफाइड activities of human beings, basically fingerprints of human beings on these small changes which is being resulting into these large climate change. Therefore जो कि एक climate change के denials की आज की बात चल रही है, that people have now given theories, especially डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक ऐसी थ्योरी दी, वो ये कहते हैं कि जो climate change है वह ह्यूमंस के कारण नहीं हो रहा बल्कि एक तो नेचुरल प्रोसेस है। Therefore, मिस्टर हैसलमैन के जो मॉडल्स हैं उसमें यह दिखाई देता है कि ह्यूमन बीइंग्स के फिंगरप्रिंट्स है छोटे छोटे चेंजेस पे, जिन्होंने लीड किया है एक बड़े क्लाइमेट चेंज को लेके। एंड दिस इज बेसिकली अ साइंटिफिक एग्जाम्पल और अ साइंटिफिक टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स, as I've said by the IPCC's report as well, that human beings are solely responsible for climate change. Now, coming to the contribution of Giorgio Parisi. Giorgio Parisi ने हमारे लिए फॉर्म करे हैं complex systems. Basically, he has tried to sort out complex system, उन complex systems की modeling करी है. These complex systems relate to climate and it's the changes that are happening into it. Complex systems क्या होते हैं? Complex system का अगर हम example, अगर हम definition देखें तो definition ये है, complex system is a system composed of many components which may interact with each other. Examples of complex system are Earth's global climate, organisms, human brain, infrastructure, etc. and rather the entire universe. Basically complex system में क्या होता है कि there are a lot of actors who are interacting with one another and it becomes difficult for us to identify the cause of one result to these actors. कि अगर कोई एक result आया है out of the interaction of various actors with one another and हमें उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि कौन से एक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया उस रिजल्ट के अंदर, then it is a very difficult system. And to identify this system, this job is being done by Giorgio Parisi. अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल लिया जा सकता है मॉनसून का। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन में एक आर्टिकल आया था जिसमें यह समझाया गया था कि अगस्त के अंदर इस बारी जो मॉनसून रेन का डेफिसिट है दैट हैज बीन ह्यूज एंड इट हैज बीन सो ह्यूज दैट इट हैजंट अकर्ड इन क्वाइट सम टाइम। अब ये जो अगस्त के अंदर जो मॉनसून डेफिसिट था, इसके कारण क्या क्या बताए गए? इसके कारण थे, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे फ्यूअर, जस्ट अ सेकेंड, इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे फ्यूअर लो प्रेशर सिस्टम्स, position of monsoon trough, western Pacific typhoons, negative Indian Ocean dipole, offshore trough, maiden Julian oscillation, which means 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 कारणों के कारण हमारे देश में अगस्त के अंदर जो रेनफॉल थी वह कम हुई। अब ये देखना कि इन कारणों में से किस कारण ने कितना कंट्रीब्यूट किया एंड क्या ये बेसिकली सिस्टम किस तरीके से वर्क करना चाहिए था कि हमें एक नॉर्मल रेनफॉल मिलती। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। So in this very manner, Giorgio Parisi has also enhanced our knowledge with respect to climate. So इस तरीके से हमने देखा कि मनाबे, मिस्टर मनाबे के ने हमें दिए क्लाइमेट मॉडल्स। मिस्टर हैसलमैन ने बेसिकली आइडेंटिफाई किया फिंगरप्रिंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स on
certain changes in weather patterns which has resulted in climate change, thus basically relating human beings as the causal agent for climate change. And lastly, Giorgio Parisi ने हमें complex climate models के बारे में enlighten किया. From UPSC perspective, it is important for us to know as to what are complex systems and how human beings, when a question comes with respect to environment and the impact of human beings over it, this very theories or with respect to and contribution of Mr. Hasselmann would also be important for us. Lastly, what are the key takeaways? First of all, as I've already told you, that the prize is just coming before COP26, which is going to be held in Glasgow. So it is going to put up more moral pressure upon the world leaders to take some concrete steps against climate change and global warming. Again, this also helps to raise awareness with respect to climate science being an integral part of physics. Earlier क्या होता था that people used to not believe that there exists anything like climate science. However, over a period of time, we have seen that now weather forecasts have become extremely accurate. Why have they become extremely accurate? Because of rising knowledge with respect to them, because of these scientists and creation of more models and more scientific tools. It is because of these very tools and scientific models that today we can predict as to when a tsunami or a cyclone will break on India's shore. So, by giving Nobel Prize to climate scientists and Nobel Prize having so much awareness around the world and the significance that it carries, it is going to raise basically awareness among people with respect to climate change. Also, this will also come as a slap against all those people who have been propagating that climate change and global warming are natural phenomena and they have nothing to do with science or nothing to do with human interference. So that will be all for today's lecture from my side. Should you have any doubts with respect to this lecture, feel free to put your doubts in the comment section. Thank you and have a nice day.